आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर खबरनामा। बंसीलालपेट डिवीजन सनत नगर के पद्मा राजू नगर पार्क में आज हरितारण प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, कॉरपोरेटर के हेमालता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पौधे लगाए। दरअसल हुकूमत माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए बरसों कबल हरितारण प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसके तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। ప్రధానమైనటువంటిది మనందరూ తెలుసు, కరోనా వైరస్లో ఆక్సిజన్ అనేది ఎంత ప్రధానమైనటువంటిదో మనం చూసినాం. ఆక్సిజన్ లేకుండా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళని కూడా మనం చూసినాం. హాస్పిటల్స్లో ఆక్సిజన్ కొరత వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందుల పాలైనమో చూసినాం. కానీ ఈరోజు మొక్కలు నాటడం మూలాన, చెట్లు పెంచుకోవడం మూలాన ఎంత ఆక్సిజన్ వస్తుందో మనందరికీ తెలుసు. అయినప్పటికీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ పద్మారావు నగర్ పార్కు సంబంధించి మరి కొత్త అసోసియేషన్, ఈ వాకర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుల వారు, అడ్వైజర్ గారు, మిగిలిన సభ్యులందరూ కూడా మరి ఎప్పటికప్పుడు ఉన్న సమస్యల్ని మా దృష్టికి తీసుకురావడం, కాలక్రమేణా ఆ సమస్యలకు కూడా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. అయితే మా నల్లిరెడ్డి గారు, రాఘవేందర్ గారు ఇక్కడ రండి. ఈ యొక్క నల్లిరెడ్డి గారికి చెప్పినది, ఈ పార్క్ ఇక మీరు ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం, ఎందుకంటే నీ పేరు మీద కాలనీ ఉంటుంది, ఈ పార్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మనకు హరితారంలో డబ్బులకు పొదువలే, సివిల్ వర్కులో డబ్బులకు పొదువలేదు. కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా చేసిస్తే వచ్చే వాళ్ళు కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ కావచ్చు, యంగ్స్టర్స్ కావచ్చు, మహిళలు కావచ్చు, ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పార్కులో ఓపెన్ జిమ్ పెట్టడం మూలాన కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇది సమిష్టిగా, నేనేమంటా అంటే నా ఇల్లు మంచిగా ఉంటే కాదు, నా ఇల్లు బాగుండాలి, నా బస్తీ బాగుండాలి, నా కాలనీ బాగుండాలి, నా పరిసరాలు బాగుండాలి. ఎందుకంటే వర్షాకాలం వచ్చిందంటే రకరకాల సమస్యలు వస్తాయి. వన్స్ రెయిన్ పడ్డ తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్గా మనం మెయింటైన్ చేయకపోతే ఈ ఈగలు, దోమలు దానికి ప్రాపర్గా ఫాగింగ్ చేయనప్పుడు, మరి హెల్త్ అధికారులు దాన్ని ప్రాపర్గా చూడనప్పుడు, డెబ్రీస్ కూడా ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్టు ఉండడం మూలాన కూడా సమస్యలు వస్తుంటాయి. కాబట్టి ఇది సామాజిక బాధ్యత కింద తీసుకొని, ఒక గవర్నమెంట్ బాధ్యతనే కాదు, అందరూ అవేర్ కావాలి. ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు చూపుతోని మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి బ్రహ్మాండంగా తీసుకెళ్తాం. అసలు ఊహించని స్థాయిలో హరితారం గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతాల వరకు ఎంతో పెరిగిపోయింది. దానివల్ల మనకు టైంకు వర్షాలు రావడం, ఎండ కూడా తగ్గడం, మనకు రకరకాలుగా ఈరోజు ఒక మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉండడం మూలాన వచ్చే డిసీజ్ కూడా దూరం కావడానికి అవకాశం ఉంది. మనకు రోగాలు రావు. మనం దాన్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే 100% రోగాలకు దూరంగా ఉంటాం. కాబట్టి దయచేసి అదొకటి. రెండోది, మా టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ గారు, మా జోనల్ కమిషనర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసేది, మా మాజీ కమిషనర్ గారు సత్యనారాయణ గారు, పాపం వారు ఎప్పటి నుంచో ఆయన కమిషనర్గా ఉండి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసిండు. పాపం ఆయన ఇంటి దగ్గరనే ఆ పార్కుని ప్రైవేట్ వాడు కాదని చెప్పేసి కూడా కేసు వేసిండు. కాబట్టి అది కూడా లీగల్గా వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఫేస్ చేయలేరు. కాబట్టి దయచేసి డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మీరే వెంటనే ఫేస్ చేసి ఆ పార్కును కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తే ఆ కాలనీ వాళ్ళకి అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. నేను ఒకటి మాత్రం అధ్యక్షుల వారికి, కమిటీ సభ్యులకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది, దీన్ని మీ సొంత పార్క్ కింద మీరు ట్రీట్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళండి. దీనికి కావాల్సిన అన్ని సకల అవసరాలని మరి గవర్నమెంటే మరి ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हरितारण प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जारी रहेगा।
इसी के पेश नज़र जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में हरितहारण प्रोग्राम किया गया, जिसके तहत पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी नुमाइंदा चेयरमैन यूसुफ पटेल, जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर जीपी कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के अंदर पटाना प्रगति प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन के नाम से जो हमारे केसीआर साहब ने जो एक नई स्कीम जो ये 7 टर्म्स है, ये इससे पहले भी 6 बार भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घरों के अंदर झाड़ा वगैरह किए गए थे जो आज बड़े भी हुए हैं, जिसकी वजह से केसीआर साहब की दूरंदेशी और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज 5 नंबर के अंदर क्लीन ग्रीन के ताल्लुक से घरे घर पर फ्रूट्स के पौधे झाड़ा दिए गए हैं वो लोग को घरों में लगाने के लिए। क्योंकि हमारे तेलंगाना के अंदर गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो कोरोना की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन झाड़ों को बड़े होने से इन लोगों को अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा करिए। हमारे बस्तियों के अंदर क्लीन ग्रीनिंग होगा और ऑक्सीजन की कमी से भी बचेंगे। और ये प्रोग्राम जो है पूरी बस्ती के अंदर साफ़ सफाई और नीटनेस के ताल्लुक से आज हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, कमिश्नर साहब और हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एई साहब और हमारे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के साजिद साहब और हमारे रशीद भाई, ये लोग सब जो ने मिलकर आज हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स के ताल्लुक से जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर है वो लोग को नोट किया गया है। लास्ट टाइम भी नोट किया गया था, उसके ऊपर भी काम अमल में आया, अभी भी नोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फा 3 महीने का ये प्रोग्राम है। हर 3 महीने के अंदर इस तरह के डेवलपमेंट्स हमारे बस्तियों के अंदर किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने यहाँ पर हर 3 महीने में एक बार प्रोग्राम को रख के अपने अपने कामों को अंजाम देने के लिए आज सुबह से ये बस्ती का पूरा दौरा किया गया था, जिसके अंदर लाइट के पोल्स, ट्रांसफार्मर्स, वाटर का प्रॉब्लम और जो स्ट्रीट लाइट्स और सफाई के लिए कचरे का मसला, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आज काम किया गया। यहाँ पर साफ़ सफाई भी हुई है, लाइटों के भी मरम्मत वगैरह जो रिपेयरिंग थे वो रिपेयरिंग भी हुए हैं और कुछ ट्रांसफार्मर्स और कुछ पोल्स की हमको रिक्वायरमेंट थी। हमारे एई साहब ने हमको तयक़ुन दिया है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम हम अंजाम देंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, इंचार्ज अहमद सादी साहब और हमारे कमिश्नर साहब और ये तमाम डिपार्टमेंट्स का मैं अखिलती वजीर के ईश्वर की मौजूदगी में आज ड्राइवर्स एम्पावरमेंट स्कीम के तहत माइनॉरिटी वेलफेयर डेवलपमेंट की जानिब से 106 कारें तकसीम किए गए। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नदीम अहमद, रुकन असम्बली नामपली जाफर हुसैन मेराज, रुकन कानून साज रियाजुल हसन अफंदी, एडवाइज़र माइनॉरिटी वेलफेयर AK खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। खुदी हासिल करने की गुजारिश है। शेख शफीउद्दीन सन्ना शरीफुद्दीन शेख साहब को चाबी हासिल करने की गुजारिश है। के बाद मोहम्मद तस्कीन सन्ना मोहम्मद यासीन साहब को चाबी हासिल करने की। नेक्स्ट सरदार सतपाल सिंह सन्ना सरदार अमन सिंह गारनी नाम। सदर AIMIM व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और उनके हमरा रुकन कानून साज कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल और हेल्थ तेलंगाना स्टेट SM रजवी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश किया।
और कहा कि रियासत भर में डिजिटल साइन बोर्ड्स पर उर्दू ज़बान लगाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर MLA याकूतपुरा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब रज़वी साहब से मुलाकात किए और सदर मोहतरम का एक लेटर उनके हवाले किए और उसमें मुतालबा किया गया था कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस सरकारी जितने हैं और तमाम मेडिकल कॉलेज और दवाखाने, मेडिकल एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट तमाम इलाक़ों में तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी साइन बोर्ड का नाम होना चाहिए। ये हमारे स्टेट की सेकंड ऑफिशियली लैंग्वेज है, दूसरी सरकारी ज़बान है, तो जहाँ जहाँ तेलुगु होगी वहाँ उर्दू होना ज़रूरी है। इसलिए नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने मुरासले में वाज़े किया कि मेडिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ रज़वी साहब से ख्वाहिश की कि तेलंगाना के हुदूद में जितने दवाखाने हैं सरकारी और जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और हेल्थ सेक्टर में जितनी भी इमारतें हैं, उन दफातर पे, उन दवाखानों पे, उन कॉलेजों पे तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू में भी नाम होना बेहद ज़रूरी है। ये क़ानूनी गुंजाइश है, क़ानूनी हक़ है, उर्दू दान लोगों की एक जायज़ मुतालबा है। बड़ा तफसीली बातचीत की है, उसके बाद रज़वी साहब ने तयख़ुन दिया कि इस पर फौरी अमल किया जाएगा और इसको रूबे अमल लाने के लिए महकमा जारी करने का उन्होंने तयख़ुन दिया। हम मुतमईन हैं कि हमारे नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब की इस नुमाइंदगी को कबूल किया गया। अनक़रीब इसका रद्द-ए-अमल आवाम के सामने आएगा। हर जगह उर्दू तहरीर दवाखानों पे, कॉलेजों पे, सरकारी इमारतों पे आपको नज़र आएगी। शुक्रिया। जमीयतुल क़ुरैश वाक़ई हुसैन आलम के दफ्तर पर आज एक इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस मौके पर वो क्या कह रहे हैं। आमिला की हंगामी मीटिंग तलब करें हम लोग, और हमारे दिल में किसी के बारे में कुछ नहीं है, और जो भी पर्सनल पे है, जैसा मंसूर चौधरी हो या कोई भी हो, हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे नहीं और ज़ातियत पे किसी से बात नहीं करना है। हमारा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकते, मिल सकते हैं हमारे से, और हम आप लोगों के साथ हैं। आप भी कुछ है तो आइए, दरगुजर करिए, हम जमात खाने को आइए, मिलिए, जहाँ मिलते मिलिए, आइए जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम लोग जो इंतजार चल रहा था कि रीज़न देना है, वो देना है, ये सब रीज़न तो हम किसी को देने का सवाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डिज़ॉल्व कर सकते हैं, मगर वो भी जो है ना, आज पूरे 97 मेंबर में 80 मेंबर से ज़्यादा लोग आके हिम्मत अफजाई करें। यहाँ पर हिम्मत अफजाई करके जो है ना, यहाँ पर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और हमारे अहदेदार पूरे, सरपरस्त जो हमारे बशीर भाई है, साबिर भाई है, हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने, और रहमान अली साहब है, बशीर साहब है, पाशा भाई नामपल्ली है, और अतीक है, बहुत से लोग हैं, और हमारे जितने भी बिरादरी के भाई लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, पूरे वन सेट आ गए, आकर जो है ना इस्तकबाल करें और बोले कि नहीं, आप नहीं छोड़ सकते जमात को, आप रहना है, आपके साथ हम हैं, आपके खांदे को खादा लगा के काम करेंगे। और हम भी जो है उसी तरीके से 14 साल से हम भी जो है ना काम करते आ रहे हैं। अल्लाह के करम से कई फलाई बहबूद के काम होते हैं यहाँ पर जमात में। पहले जो है 200 बेवायाँ थे तो 200 रुपये देते थे एक ज़माने में, जब इनकम कम थी। हम जब आए खुद 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ऐसा कुछ इनकम थी, तो हम आने के बाद करीब 20 लाख को टच हो गई इनकम, अल्लाह का करम है। तो फिर हम आने के बाद 500 करे, फिर आज 1000 रुपये देना शुरू कर दी हमारी जमीयतुल क़ुरैश हैदराबाद, क्योंकि मेरे भाई आज हम सदर है, कल नहीं है, मगर आपस में इंतशार नहीं करना है, सब मिल के भाई भाई बोल के रहना है और सदर का एहतराम करना है। मैं ही हूँ आज सदर या कल और कोई है, मगर सदर का ही आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाहर कोई वैल्यू बिरादरी की नहीं रहेंगी। बिरादरी का आपको विखार रखना है तो आप ये सब चीज़ें बंद करना है। आप सब मिल के जो है ना भाई भाई बोल के काम करना है। सब चीज़ अगर मैं भी कुछ बोला तो उसको दरगुजर कर दिया, मैं भी दिल से माफ़ कर दिया हर चीज़ को। आप लोग भी ये करके ये क्लिपां वगैरह बंद करिए, आप लोग आके गले लगिए, काम करिए, हम आपके साथ हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं आगे बढ़िए, हम भी आपको इंकरेज करेंगे, आप भी करिए, हम भी करिए। हमारे मेंबर्स, अहदेदार सब
बिरादरी के हर फर्द का काम है, सब मिलके काम करना है। छोटे मोटे गलतियाँ किसी से भी होते हैं उसकी छोड़ दीजिए, उसको दरगुजर कर दिए, हम भी हमारे दिल में नहीं रखते हम। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में जुमे की शाम के औकात में पुलिस ने 5 स्टार होटल पर छापा मारा और जिनसी रैकेट में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 2 अफराद और 7 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पंजागुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि सोमाजीगुड़ा में वाक़ई एक 5 स्टार होटल से 9 अफराद की एक गिरोह को जिनसी कारोबार में मुलविस पाए जाने पर गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन मैनेजमेंट के ज़रिए चलाया गया था, जिसमें बैंक और मोबाइल लेन देन और लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए जिस्म फरोशी का रैकेट अब हाईटेक तौर पर किया जा रहा था। गिरफ्तार होने वाली 7 लड़कियों का ताल्लुक बिहार, कोलकाता, चंडीगढ़ और दीगर मुकामात से बताया गया है। रचाकुंडा पुलिस ने हफ्ते के रोज रमावत विजय नामी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विजय अपनी बीवी पर शक व शुबा किया करता था। कविता रमावत 18 जून को सुबह 3 बजे सो रही थी, तब उसके शौहर विजय ने उसे तकिए से दबोच कर मौत के घाट उतार दिया था और उसके अफराद ख़ानदान को यह इत्तला दी कि उसकी मौत कोविड की वजह से हुई। कविता के कत्ल के बाद विजय मुबैना तौर पर लाश को अपनी ही ऑटो रिक्शा में अपनी
अभाई गांव ले गया और जल्दी से ही इसकी आखिरी रसूमात अदा की। यहां तक कि इसने कोविड इन्फेक्शन का हवाला देते हुए अपने रिश्तेदारों को नाश को छूने से रोकने की कोशिश की। इस ज़िमन में रचाकुंडा सीपी महेश भागवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ఈ కోవిడ్తో చనిపోయింది అని చెప్పి ఒక భర్త అత్త మామని కన్విన్స్ చేస్తూ ఈ పనసలిపురం నుంచి ఆటో రిక్షాలో భార్య బాడీ పెద్ద ఆర్చిరలపల్లి బియ్యపల్లి మన నల్గొండ జిల్లా అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ అది ఫైనల్ రైట్స్ కూడా చేయడం జరిగినాయి. ఆ రోజు అది కోవిడ్తో చనిపోయింది అని ఎవరి దగ్గర రాదు, ఇక్కడ ఈ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని చెప్పి అందరినీ దూరం పెట్టడానికి ప్రయత్నం కూడా ఆయన చేశారు. ఈ అమ్మాయి కోవిడ్తో చనిపోలేదు, ఇంకో వేరే కారణాలు ఉన్నాయని తల్లిదండ్రితో అనుమానం వచ్చింది. ఆ అనుమానంతో వాళ్ళు మా వనస్థలిపురం పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి అక్కడ అది కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్తో మన ఇన్స్పెక్టర్ ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో ఈ పెద్ద అర్సిరలపల్లి ఎంఆర్ఓ గారికి ఈ బాడీ మళ్ళీ ఎగ్జ్యూమ్ చేయాలని ఆ రిక్విజిషన్ ఇచ్చారు. ఆ బాడీ ఎగ్జ్యూమ్ చేసి పంచనామా అయింది, అక్కడ మళ్ళీ పోస్ట్మార్టం అయింది. సో పోస్ట్మార్టం అప్పుడు క్లియర్గా ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ థ్రాట్లింగ్తో అది చనిపోయినాయని, నెక్ దగ్గర ఇంజురీస్ ఉన్నాయని అప్పుడు క్లియర్గా అది పోస్ట్మార్టంలో వచ్చింది. సో మళ్ళా ఫస్ట్ అనుమానం అది భర్త మీద ఉంది కాబట్టి ఆయన కస్టడీలు తీసుకొని మా వాళ్ళు ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన క్లియర్గా ఇది హత్య, కోవిడ్తో ఈ అమ్మాయి చనిపోలేదు, ఈ అమ్మాయికి కొంచెం ఆయనకు కొంచెం డౌట్ ఉంది అమ్మాయి మీద, ఆ డౌట్తో ఈ అమ్మాయి ఎక్కువ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరితో, ఆ అనుమానంతో ఆయన భార్య రాత్రి పడుకున్నప్పుడు థ్రాట్లింగ్తో అమ్మాయికి చంపేశారు. చంపేసి ఆయన ఆటో रिक्शा ड्राइवर बेसिकली भरता। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel.